Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. Well, since university exams have been started, so it is a high time for students to know about the theory exams. So today we have with us Dr. Karthik from GMC Jammu, who is the university topper as well. So please help me in welcoming Karthik, who will help us in knowing how to write university prof examination. So, hello everyone, this is Karthik, and I'm presently a third year MBBS student at GMC Jammu. I was my college topper and third in the whole university in my second professional exams. And today I'll be helping you कि आप लोग कैसे exams ace कर सके your university exams. So I'll be sharing some tips and tricks that help me and जो आपको भी help कर सकती है. So I've made something. Can I share the screen? So am I audible? Yes, you're audible. So I know आप सबके पास obviously भी time कम होगा क्योंकि like इस point of time पे बहुत सारा burden होता है and you have to revise a lot of things. So I'll try कि मैं जल्दी खत्म कर सकूं. So I made this little PPT जिसमें I covered all the three subjects. So starting with pathology. तो पेपर 1 के लिए हिमाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेपर 2 के लिए जीआईटी एंड रीनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दो लॉन्ग केसेस आते हैं पेपर 1 में 20 मार्क्स के एंड पेपर 2 में 5 लॉन्ग केसेस ऑफ 40 मार्क्स. सो हाउ टू अटेम्प्ट, देखो देयर इज अ डिफरेंस. पैथोलॉजी, फार्मा एंड माइक्रो तीनों को करने का एक अलग तरीका होता है. So what I did, actually my seniors, they helped me a lot last year ki how should I attempt the paper ideally. Like first year maybe I used to do a lot of hard work and paper deta tha, but itne अच्छे scores nahi aate the. Last year I did a bit like something else, and so what helped me, patho mein what matters is like your creativity is like number one पे. Any question, कोई भी question आ रहा है, you have to draw diagrams, and diagrams बनाने में ही you have to be creative. So wherever necessary, draw microscopy with your HND pencil, and flow charts are necessary. So like I wrote, draw anything and everything, write less, draw more. So this is the key. सो अगर आपका लाइक 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो यू शुड ड्रॉ एटलीस्ट लाइक 3 to 5 डायग्राम्स एंड यू शुड ड्रॉ लाइक माइक्रोस्कोपी, एटलीस्ट एक माइक्रोस्कोपी तो यू शुड ड्रॉ. सो जो लाइक दिस इज द की, यू हैव टू ड्रॉ like anything and everything for your pathology exam. And so एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक सिरोसिस की. लाइक दिस क्वेश्चन केम इन माय एग्जाम एंड दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिरोसिस में क्या कर सकते हैं आप, लाइक यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. यू कैन ड्रॉ अ shrunken liver, then you can draw like nodules over this shrunken liver, then you can draw the microscopy of this. You can draw bands of these fibroblastic tissues, and then regenerating nodules, like anything. like तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है ना, तुम बना दो, लिख दो. क्योंकि लिखने से ज्यादा ना बेटर जो आपका इन्विजिलेटर है, वो आपका जो आपने जितना क्रिएटिव हुए पेपर में, वो इट मैटर्स ज्यादा. सो आई प्रिपेयर्ड दिस लिस्ट ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. मैंने लास्ट 5 years के पेपर उठा के, लाइक द टर्मिनल्स एंड PYQs, उसमें these are your like most important topics. 8 markers, 5 markers and 2 markers. Cirrhosis, carcinoma, then nephrotic nephritic pneumonia. You can, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो 8 मार्कर के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3-4 पेजेस, जिसमें एटलीस्ट आप 3-4 डायग्राम्स बनाओ. कोशिश करो आधे पेज में डायग्राम बनाओ. एक माइक्रोस्कोपी इज नेसेसरी. लाइक सिरोसिस की है तो जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, एक माइक्रोस्कोपी बनाओ एंड राइट लेस, राइट इन फ्लो चार्ट्स एंड बी क्रिएटिव. लाइक यू हैव टू बी क्रिएटिव. आई रिमेम्बर मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कैल्शियम स्टेन्स पे. मैंने एक आर्टीरियल बनाया था जिसमें लाइक इट वाज डिपिक्टिंग मॉन्कीबर्ग this sclerosis, calcific sclerosis. So like I don't know उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, and just draw anything. and मैंने घर जाके I checked Google and like it वो मिल रहा था उसके साथ. So like you have to be creative. Baki, you can see this list. Like these are very important questions. I've already highlighted this. Then comes your microscopy. आपका diabetic
सॉरी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की माइक्रोस्कोपी, हेपेटाइटिस बी का ग्राफ, एमआई के मार्कर्स, लंग कैंसर की माइक्रोस्कोपी, एम्फाइसीमा की माइक्रोस्कोपी, सॉरी एम्फाइसीमा का ग्रॉस, देन दीज अल्सर, एजीएन, फाइब्रॉइड, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेमिनोमा का माइक्रोस्कोपी। ये सारी माइक्रोस्कोपी आप देख लेना, ये 8-10 माइक्रोस्कोपीज है जो लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज एवरीथिंग यू हैव टू लाइक, आपको पैथ के लिए क्या करना है, आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, व्हाट शुड यू डू, एंड माइक्रोस्कोपीज में भी क्या इंपॉर्टेंट है। देन कम्स हिमैट, हिमैट का भी एएमएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस सेल्स इंपॉर्टेंट है, ए प्लास्टिक एनीमिया, सीएमएल, देन क्लासिफिकेशन पार्ट, देन hemolytic anemias, and a lot of people like लास्ट कुछ दिनों में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर जो मुझे पूछ रहे थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या पढ़े। सो हैजार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड इफ यू कैन लाइक, अगर आपके पास टाइम है तो यू स्टडी that circulatory overload, transfusion associated, and then TRALI, like if you have time, but this is what जो ज़्यादा important है, I mark this. So pathology को इसी नोट पे एंड करते हुए, you have to be creative, you have to draw diagrams, flow charts, draw anything and everything you know, but write less. So this was all about pathology. Now comes pharma. So pharma में paper 1 में your general pharma, I've seen a lot of people जो general pharma neglect करते हैं, but general pharma is guys very important. General pharma and ANS is like very very important. CVS से भी ज़्यादा important ये दो topics. I've seen people like studying CVS, and a handful of questions they actually come. Like angina से ही आता है and क्या आता है. But this general pharma and ANS, they are very important. Then paper 2 में, paper 2 का even I remember last year जब मैं prepare कर रहा था तो क्योंकि paper 2 के जो topics है ना, they are a bit difficult and उनको याद करना is a bit ज़्यादा like hectic है. But I still did something. So मैं आपको बताता हूँ what I did. So how to attempt pharma? Like pharma and patho में जमीन आसमान का फर्क है. You have to write to the point. You have to write neatly in points, and what matters is your quality, not quantity. आप 10 पेज भरो, 20 पेज भरो, doesn't matter आपने कितना क्या लिखा है, like quality क्या है, what points you have written is what matters. Don't write like ज़्यादा मत लिखो, कम लिखो, but quality wise लिखो, and flow charts में लिखो. This is the difference. Micro में you have to fill the pages, but pharma में ऐसा नहीं है. Pharma में you have to like write to the point. Like अगर आप ज्यादा भी लिख दोगे ना तो टीचर सॉरी जो इन्विजिलेटर है वो आपका वो पॉइंट छोड़ देगा, एंड आपको ही फिर प्रॉब्लम हो जाएगा जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा भी है, तो इट विल गो नॉट चेक्ड. सो दिस इज व्हाट मैटर्स. नाउ सो फार्मा में ऐसे लॉन्ग केसेस नहीं होता है, लाइक आई गेस एक या दो ही लॉन्ग केसेस आता है. मोस्टली रैशनल बेस्ड क्वेश्चंस, मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एंड आपका कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब भी होते हैं. लाइक लॉन्ग आंसर्स भी अगर होंगे तो 1 और 2, लाइक उससे ज्यादा नहीं. सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फार्मा पेपर. लाइक मैंने बहुत कंसाइज करके 15 टॉपिक्स फॉर फार्मा 1 एंड 15 टॉपिक्स फॉर फार्मा 2. So these are guys very important. I've seen कुछ last few days में कुछ colleges के I saw these send-ups, and like you trust me, in almost 15 में से 10 or 12 questions were repeated. So like you have to do these questions. तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा, but okay, let me mark जो like ज़्यादा important है, so that अगर आपके पास टाइम भी कम है so वो ही सब करो. So clinical significance of enzyme induction is very. डॉक्टर कार्तिक, सॉरी टू इंटरप्ट, वी कैन डू वन थिंग ना, जो ये हाँ. सारे पीडीएफ्स हैं हम इसको लिंक के साथ वी कैन शेयर इट अप. Yes, yes, I can share this. जो ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब जैसे जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, उसमें हम डायरेक्टली शेयर करवा देंगे जो Okay, मार्केट okay. वगैरह. आई थिंक दैट विल वर्क फॉर द स्टूडेंट्स. So I don't need to tell these. हाँ, यस यस. ठीक है. तो मैं अभी मार्क नहीं करूँ ये सब? हाँ जी, हाँ जी. कर लूँ मार्क के नहीं करूँ, ये पूछ रहा हूँ. मतलब देख लो, इट इज अप टू योर कन्वीनियंस. नहीं, मैं लाइक आई विल वाइंड अप, जल्दी कर लूंगा. हाँ हाँ, श्योर श्योर, क्योंकि टाइम जैसे कम है तो आई थिंक अगर वाइंड अप हो सके चीजों को तो दैट विल ठीक बी है, फाइन. ठीक है. सो आपका एंजाइम इंडक्शन इज इम्पोर्टेंट. ओके, योर ये आप टॉपिकल लिस्ट देख लेना. सो मैं मैनेजमेंट बेस पे बता देता हूँ. आपका कुछ क्वेश्चंस होते हैं फार्मा में जो लाइक टिपिकल मैनेजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इसमें यू हैव टू राइट जो आपका ड्रग्स है
वो क्योंकि आई हैव सीन पीपल वो सिर्फ ड्रग के नाम लिख के आ जाते हैं एंड फिर 5 में से उनको 2 या 3 ही नंबर मिलते हैं. सो यू हैव टू राइट ड्रग. ड्रग के साथ आपको उसका डोजेज फॉर्म लिखना है. डोजेज फॉर्म के साथ आपने उसको लाइक द साइट कौन सा है, इंटरमस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंटरडर्मल है. सो यू हैव टू राइट दैट. आपको उसका डोज नहीं लिखना है बट जो बाकी सारी चीजें बोली मैंने वो यू हैव टू राइट दैट. एंड देन अगर आप उसको प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखते हो सो दैट विल बी चेरी ऑन केक. आपको लाइक आई गेस तो 5 में से 5 ही मिलेंगे आपको. सो कुछ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एनाफिलैक्टिक शॉक इंपॉर्टेंट है, एमआई इंपॉर्टेंट है, पेप्टिक अल्सर का इज important, acute asthma is important. Then for pharma 2 we have thyroid storm ka management, we have status epilepticus management, typhoid management, then MDR-TB management, management of acute gout, and then the management of scabies psoriasis. So ये सब मैनेजमेंट वाली चीज आप देख लेना क्योंकि ये स्कोरिंग होता है. जस्ट हैव टू रिमेंबर ड्रग का नाम, उसका डोजेज फॉर्म एंड यू विल गेट 5 मार्क्स. सो दिस इज लाइक आप ये लाइक मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है ऑफ दिस फार्मा. सो वी आर डन विद फार्मा. वापस एक बार इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ. सो यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, नीटली राइट, मतलब लिखो क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी. एंड फ्लो चार्ट में लिखो राइट टू द पॉइंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट मैटर्स. एंड लाइक अगर कोई ड्रग का आपको आ भी जाता है लाइक पीपीआईज का ही आ जाता है सो आपको पॉइंट्स में लिखना. एडीआर 2-3 पॉइंट्स में लिखो, यूजेस 2-3 पॉइंट्स में लिखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पॉइंट में लिखो. एंड इस टाइम पे सारे ड्रग्स मत पढ़ो. मैंने जो जो ड्रग की क्लासिफिकेशन दी है जस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ो, और जो मैंने ड्रग लिखा है ना उसी को पूरा पढ़ो, यूजेस, एडीआर एंड योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सारा मत पढ़ो प्लीज. आई शेयर दिस पीपीटी. जो जो मैंने बोला प्लीज वो करो. ट्राई, अभी केडीटी इज अ लॉन्ग बुक, ट्राई लाइक आपके नोट्स होंगे या शानबाग से पढ़ो. So up next we are micro. So micro में पेपर वन के लिए आपका हाइपर सेंसिटिविटी, बैक्टीरियल जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर 2 के लिए पेपर 2 का सीन रहता है एक लॉन्ग केस सीएनएस से, एक लॉन्ग केस यूरोजेनाइटल, वन लॉन्ग केस फ्रॉम रेस्पी एंड वन लॉन्ग केस फॉर स्किन. सो यू कांट अफोर्ड टू मिस. आप कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो. यू हैव टू रीड एवरी टॉपिक क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आएगा ही आएगा. हाँ, प्लस जो आपके एमसीक्यूज होते हैं माइक्रो के, दे कम डायरेक्टली फ्रॉम अपूर्वा शास्त्री. सो ट्राई कि अपूर्वा शास्त्री के एटलीस्ट वो आई गेस हर एक चैप्टर के बाद 8 या 10 एमसीक्यूज होते हैं तो वो उसी टाइम यू सॉल्व इट. सो यू सॉल्व देम. सो लाइक माइक्रो का पेपर आई हैव सीन लाइक जो लोग होते हैं लाइक स्टूडेंट्स, लाइक मैं भी लास्ट ईयर, हम फार्मा एंड पैथो में इतना बिजी हो जाते हैं कि माइक्रो जितना हमारे पास टाइम ही नहीं बचता. but like micro is very scoring. My senior used to tell me कि जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा लाइक वो माइक्रो ही है. यू हैव टू डू लेस एंड इट विल रीप मोर. सो माइक्रो का ऐसे ही सीन रहता है. कोई भी आपका डिजीज होगा उसका आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखना है. एंड देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस. मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा हर एक डिजीज को पढ़ने का. सो जिस्ट है ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस. आई डोंट रिमेम्बर दिस पेज नंबर ऑफ केडीटी बट प्लीज इसको एक बार रट लो. ये 8 पॉइंट्स है फॉर बैक्टीरिया एंड देन these 5 points for virus. So if any disease comes, and mostly 8 number में ही laboratory diagnosis आता है. So if you write only these 8 points or these 5 points if there is a viral disease, so trust me you'll get at least 5 marks तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. So please at least like अगर आप diseases नहीं कर पाओगे तो at least ये lab diagnosis तो पढ़ ही लेना. Actually मुझे strict helped me a lot. मेरे को याद है like एक disease मुझे नहीं आती थी but still मैंने ऐसे form में कुछ लिख दिया and I still got like 5-6 marks. So ये this was a like this trick helped me a lot. इसके अलावा there are some topics of micro I have like written इधर आप देख सकते हैं. सो गो थ्रू दीज टॉपिक्स. ये पूरा पेपर 1 पेपर 2 सब कंबाइंड है. एंड या सो फॉर माइक्रो go through these laboratory diagnosis and your hypersensitivity genetics are very important. Then CNS urogenital respiratory and skin एक एक लॉन्ग केस आएगा. वो मैंने इधर हाईलाइट कर दिया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है.
So yeah, we are done with micro and pharma and then patho. So I've made something. So am I audible? Yes, yes. Okay. Got it. Yes. So like I've seen this thing कि पढ़ के सब जाते हैं, like एट द एंड सभी पढ़ के जाते हैं, बट एक डिस्पेरेंसी रहती है कि जो कुछ टॉपर्स होते हैं दे गेट अ बिट मोर मार्क्स, लाइक आप भी पढ़ के जा रहे हैं, वो भी पढ़ के जा रहे हैं, बट उनको वो 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. सो वो इसीलिए होते हैं कि हाउ डू यू अटेम्प्ट द पेपर. सो आई टुक दिस एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजी. Suppose a long question comes on cirrhosis for 8 marks. So, as I already told you, since diagrams are very important, so how are you going to attempt this long question? So first of all, you have to write a bit about the intro, like introduction of this topic, like what is cirrhosis. Like you can write like anything, it is an irreversible disorder of what organ of liver, and end stage disorder, and what is it characterized by, and what do you all see. So irreversible end state disorder of liver organ, like this is sufficient. देन कॉजेज क्या है जो आपको नोन कॉजेज पता है. हाँ, अल्कोहलिज्म हो सकता है, और लाइक एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर. सो ऑल 2-3 कॉजेज दैट यू नो. देन अ बिट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. लाइक जनरली हम इसमें अल्कोहलिज्म का ही लिखते हैं कि फर्स्ट देयर इज अ स्टेज ऑफ स्टेटोसिस, देन स्टेटोहेपेटाइटिस, एंड देन सिरोसिस. So you can draw actually diagrams here. Like आपको ऐसा पिकासो बनने की कोई जरूरत नहीं है. कुछ भी लाइक बहुत मिनिमल भी ड्रॉ कर सकते हैं. स्टेटोसिस में एक बड़ा लिवर दिखा दो, स्टेटोहेपेटाइटिस में ऐसा लिवर दिखा दो थोड़ा रेडिश है, थोड़ा लाइक अ बिट ऑफ इन्फ्लेमेशन है. सिरोसिस में श्रंकन लिवर विथ नोड्यूल्स बना दो. सो लाइक टाइम भी आपको अपना सेव करना. सो दिस इज वेयर जो टॉपर्स है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कुछ बिट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स होती है जिनकी जो इन्विजिलेटर होती है उसकी नजर पहले इन्हीं सब चीजों पे पड़ती है कि हाँ ही हैज रिटन इन पॉइंट्स, एंड साथ साथ में ही उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है. लाइक जैसे मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको, इट विल हार्डली टेक लाइक 1-2 minutes. देन अ बिट अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. हाँ, जॉन्डिस दिख सकता है, एंसेफेलोपैथी दिख सकती है, and like ascites, portal, like symptoms हो सकते हैं, portal hypertension दिख सकता है. So all the clinical features, now concerned with pathology, most important is your gross and microscopy. So gross में आपको क्या दिखेगा, ये cirrhosis वाला, कोई भी एक cirrhotic liver, shrunken होगा, nodules होंगे. So draw that. Write a bit about it. Liver will be shrunken, weightless होगा, cirrhotic nodules दिखेंगे, bands, fibers दिखेंगे, hard and consistency होगा, coarse like pattern होगा. Then comes the microscopy. It is also equally important. Use, like always use HNE pencil. Very important. Normal please pencil color से मत draw करना. HND से draw करोगे तो एक impression आता है टीचर पे. एक सर्कल ड्रॉ करो, उसके अंदर ड्रॉ करो बैंड्स ऑफ लाइक मैंने भी सिरोसिस का कभी माइक्रोस्कोपी नहीं देखा, बट लाइक जो मेरे दिमाग में है, हाँ, बैंड्स ऑफ रीजनरेटिंग नोड्यूल्स होंगे, उनके बीच में लाइक फाइब्रोसिस के लाइक स्ट्रैंड्स होंगे, और बीच में हेपेटोसाइट्स होंगे जो रीजनरेटिंग होंगे. तो यू हैव टू बी क्रिएटिव. तो 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, सो यू कैन ड्रॉ एटलीस्ट 4-5 डायग्राम्स विथ 1 माइक्रोस्कोपी, और जिसको तुमने 5-6 बुलेट पॉइंट्स में भी लिख दिया. सो लाइक आई लाइक बेट यू कि 8 में से तो यू विल गेट 7 मार्क्स लाइक फॉर श्योर. So this is how you should attempt a 8 mark question. Now similarly for this multiple myeloma, like if it comes for 5 marks, so draw an M spike. How it looks कि gamma globulin का एक spike आ गया. So draw this graph, draw this diagram, then write a bit about multiple myeloma. हाँ, this is a clonal proliferation of plasma cells. Then प्लाज्मा सेल्स में आपको क्या दिख सकते हैं, रसल बॉडीज दिख सकती है, डचर बॉडीज दिख सकती है. सो लाइक इसमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक ग्राफ. सो डोंट राइट अबाउट मल्टीपल माइलोमा. अगर आप सिर्फ एक ग्राफ भी बनाते हो ना, तो 3-4 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे. सो लाइक यहाँ इंपॉर्टेंस आती है आपकी डायग्राम्स की एंड इस माइक्रोस्कोपी की. इसको भी बुलेट पॉइंट्स में लिखो. राइट अ बिट अबाउट इंट्रो ऑफ मल्टीपल माइलोमा क्या है, देन व्हाट डू यू सी एम स्पाइक में, एंड राइट अ बिट अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स.
क्या दिखेगा आपको इसमें? लिटिक, बोनी लीजन्स, पेन्स हो सकते हैं इसमें पेशेंट को। इसमें ग्रॉस एंड माइक्रो का तो कोई सीन ही नहीं है सिंस ये मैट का क्वेश्चन है। सो राइट अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, राइट अबाउट दीज इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैट का question you need to write about the lab investigations. So these 4 points are very important. इसमें I gave you these 6 points. So if any कोई डिसऑर्डर या पैथोलॉजी आती है तो उसको ये 6 पॉइंट्स में लिखो फॉर एन 8 मार्कर, फॉर 5 मार्कर आप अगर हेमाट का तो ऐसे लिख सकते हो। नाउ फॉर फार्मा, फार्मा में यूजुअली 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मार्क्स के। So suppose a question comes on any drug, like PPI is an important drug. So how can you attempt this? Like तीन ही इसको, सॉरी 4 ही हेडलाइंस में लिखनी है। तो पीपीआई के एग्जांपल्स लिख दो, हाँ पेंटोप्राजोल है, रैबिप्राजोल है, लांसोप्राजोल है, 3-4 एग्जांपल लिख दो। अगर 2 भी याद है तो 2 भी लिख दो, एक भी आती है तो एक ही लिख दो। मैकेनिज्म फॉर एक्शन लिख दो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा। यूजेस लिख दो 2-3, हाँ गर्ड में यूज कर सकते हैं, एच पाइलोरी के रेजिमेन में यूज कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज कर सकते हैं। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर आपको 1-2 आती है लिख दो, हाँ विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है। देन अ बिट जो आपको कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, नहीं तो हम डिक्टम ही हम किसी में भी नॉजिया वॉमिटिंग घुसा ही देते हैं, तो वो घुसा दो। सो हाँ आप पॉइंट्स में लिखो, कुछ छोड़ो मत। जैसे ये है एग्जांपल्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस ADR, ऐसे लिखोगे तो जो इन्विजिलेटर है उसको पसंद आएगा। अब फार्मा में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि 4-5 क्वेश्चंस तो मैनेजमेंट के बेसिस पे आते हैं, जो मैंने तो आपको पहले बता दिया कि 8-10 मैनेजमेंट जो इंपॉर्टेंट है। सो उसको अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो यूल गेट मोर मार्क्स। आप एक दिस ड्रॉ बॉक्स, देन राइट पेशेंट डिटेल्स, देन डॉक्टर डिटेल्स, डायग्नोसिस कौन सा आपका डिजीज पूछा, देन ट्रीटमेंट ऐसे लिखो। यू डोंट नीड टू राइट द डोजेस, जस्ट राइट द डोजेज फॉर्म। कैपिटल लेटर्स में आप ड्रग का नाम लिखो, देन आपने उसको किस रूट से दिया है, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डोंट नीड टू राइट द डोजेज फॉर्म। हाँ एड्रेनलिन का यू नीड टू नो कि IM है तो 1:1000 में दे रहे हैं, उतना सफिशिएंट है। इतना अगर आप लिखोगे ना तो 5 में से 5 तो यूल गेट, एनी हाउ आपको मिलेगा ही मिलेंगे 5 में से 5। सो दिस वाज अबाउट फार्मा। पैथो का तो मैंने आपको बताया। पैथो में थोड़ा इंप्रेशन बनाना पड़ता है टीचर के पास, यू टीचर्स के लिए यू नीड टू राइट और ड्रॉ समथिंग एक्स्ट्रा। फार्मा में मैंने बोला टू द पॉइंट लिखना है। नाउ कम्स माइक्रो। ओके माइक्रो के साथ मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब ही है, क्योंकि माइक्रो हम छोड़ देते हैं, एंड के लिए रखते हैं। सो माइक्रो में काफी ऐसी डिजीजेस होती हैं, काफी क्या पूरा पेपर ही माइक्रो का इसी बेसिस पे आता है। हाँ मलेरिया का लैब डायग्नोसिस बताओ, ब्रुसेलोसिस का लैब डायग्नोसिस बताओ, कोई भी टाइफाइड का लैब डायग्नोसिस बताओ, एड्स का लैब, सॉरी HIV का लैब डायग्नोसिस बताओ। So these are from Apurva Shastri. These are very important photos. आप सिर्फ, this is the lab diagnosis of bacterial infections. आप ये 8 पॉइंट्स रट लो, एंड ये लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन है, ये 5 पॉइंट्स रट लो। यू जस्ट राइट दीज थिंग्स। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है कि विच स्टेन आर वी यूजिंग, विच माइक्रोस्कोपी आर वी यूजिंग, जस्ट राइट हाँ वी हैव टू डू माइक्रोस्कोपी, देन कल्चर, देन आइडेंटिफाई इट, देन ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, देन आगे सेरोलॉजी किया या कुछ PCR VCR ELISA किया। इतना भी करोगे ना, 7-8 मार्क्स के होते ना, यूल गेट 5, क्योंकि आपने इस ऑर्डर में लिख दिया ना। तो I'll actually request you कि before going for the exam ये बस रट लो, बैक्टीरिया का एंड वायरस का। इट विल हेल्प यू। मुझे पता है आपको सारी डिजीजेस नहीं याद रहेगी वहां जाके उनके माइक्रोस्कोपी, बट इफ यू विल राइट जस्ट दिस यू विल गेट मोर देन हाफ। So now a lot of people were also asking कि what if we don't know answer to a particular question, तो क्या करें? So guys, please don't leave any question, write anything or everything you know। कुछ भी लिखो, बट लिखो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखो कुछ भी, you'll get 1 to half। like uh, you don't have to leave any question। हर एक क्वेश्चन you need to attempt। अगर आपको आता है नहीं आता है, कुछ भी लिखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आई रिमेम्बर दिस वन क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपको भी आ सकता है कि कौन सा कैल्शियम स्टेन्स है जो हम यूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड फॉर 5 मार्क्स।
तो मुझे सिर्फ इतना ही आता कि एलिजेरिन रेडेस एंड वॉन कोसा। अब मैं 5 नंबर में इतना लिखूंगा तो आई वोंट गेट एनी मार्क्स, लाइक 1 1.5 से क्या ही ज्यादा मिलेगा। बट देन कुछ भी लिख दिया मैंने, लाइक हाँ कैल्शियम का ये रोल होता है हमारी बॉडी में, देन स्टेन्स ये यूज होती है, देन आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ एन आर्टीरियोल। उसमें आई अब ट्यूनिका मीडिया में मैंने ब्लैकिश सा कुछ बना दिया, and then I wrote this is calcium staining of like a calcific medial sclerosis of an old aged man's arteriole. So like if you don't know anything, like but कुछ आसपास से उसके बना के लिख दो। कोई भी लाइक एंटी माइक्रोबियल आ रहा है तुम्हें नहीं पता है, लिख दो कुछ भी स्पेक्ट्रम में लिख दो, लिख दो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया, सो यूजेस है तो कोई भी जनरल यूज लिख दो, बट लिखो, लाइक डोंट लीव एनी क्वेश्चन, लाइक इट विल कॉस्ट यू अगर तुम कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो। सो दिस वाज द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। एंड अगर कोई तुम्हें नहीं भी आता है तो लाइक बोलते हैं ना, बीट अराउंड द बुश, कुछ भी लिखो बट लिखो, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ओके सो एक चीज और डॉक्टर कार्तिक, अभी देखो जैसे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं राइट, हाँ। अभी थर्ड ईयर में हर किसी का भी जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो एक माइंडसेट भी रहता है कि एवरीवन गोज विद मैरो राइट, और ये क्वेरीज भी आती है कि कब लेना चाहिए मैरो, तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने कब लिया था मैरो का सब्सक्रिप्शन? ओके सो लास्ट ईयर आई रिमेम्बर ये लाइक ऐसा ही फेस चल रहा था, एंड हाँ सो हमारे प्रॉफ्स आ रहे थे एंड लाइक बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको फर्स्ट ईयर से बोलते हैं कि सीनियर्स आर देयर, सीनियर्स आर देयर, लाइक वो स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है। लास्ट ईयर भी काफी सीनियर्स ने मेरा हेल्प किया। हमारे लास्ट ईयर भी ऐसे मैरो ग्रुप्स फॉर्म हुए थे जिसमें वी यूज्ड टू गेट डेली मटेरियल्स, एंड हाँ हमारे सेशंस भी ऐसे कंडक्ट होते थे। तो लाइक लास्ट ईयर आई गेस हमारा एक सेशन हुआ था जाहिद सर के साथ जिसमें हमारे सीनियर्स भी थे, सो दे टोल्ड मी कि आफ्टर द एग्जाम्स you fill this form and you buy Marrow. So I guess एग्जाम्स के जस्ट कुछ दिन बाद ही, लाइक 5-10 दिन बाद ही मैंने मैरो लिया था। एंड फिर मुझे काफी सीनियर्स ने बोला था कि पैथो एंड फार्मा से वापस लाइक वो वीडियो लेक्चर्स बिंज करके देखो जैसे तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो उस टाइम में। एंड या उसके बाद फिर जैसे जैसे लाइक अभी भी दे पीपल गिव मी एडवाइस एंड आई फॉलो इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच कार्तिक। थैंक यू।